شازیہ صاحب، آپ کیا صدر ٹرمپ کا ایران پر آپریشن ایپک فیوری سے بڑے حملوں کا اشارات واقعی اب ایران کو مذاکرات کی میز پر دوبارہ سے لانے کی حکمت عملی ہے یا پھر امریکہ خطے کو دوبارہ سے جنگ کی جانب دھکیلتا نظر آتا ہے؟ جو ہیں وہ تو ان کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے. وہ کبھی مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے کوئی بیان دے دیتے ہیں, کبھی وہ اپنا پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے, کبھی ڈومیسٹک پاپولیشن کو. لیکن اس دفعہ ان کی تیاری کو دیکھ کر لگتا ہے, اور جو بجٹ وہ مانگ رہے ہیں اور جو ان کو پریکٹیکلی مل گیا ہے ملٹری بجٹ, اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے جو منصوبے ہیں وہ کسی بڑے حملے کے یا لمبی جنگ کے ہیں. وہ پیچھے ہٹنے کے لیے کے موڈ میں نہیں ہے. اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تیار. تو اب ان دو کے ہوتے ہوئے اس پورے ریجن کی جو سلامتی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ شاید ہم امریکہ سے یہ ڈیمانڈ ہمیں ان لاجیکل لگتی ہے کہ کیا ان سے یہ کہا جائے کہ آپ فہم سے کام لیجئے, عقل سے کام لیجئے, اسٹریٹجک پیشنس دکھائیے, ہماری زندگیاں برباد کرنا چھوڑ دیجئے. کیونکہ ہم نے, اگر میں اپنی بات کروں تو ہم نے کانشیس جو ہمارا لائف اسپین ہے اس میں یہی دیکھا ہے, ان کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جب یہ ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تو اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے ہیں, اس کو کر کے اس کو جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں چاہے دہائیاں لگ جائیں. اب ایران کی سچویشن اس دفعہ ڈیفرنٹ ہے عراق سے, لیبیا سے, افغانستان سے. وہ اس طرح کہ وہ ملک بہت اکیلے کھڑے ہوئے تھے. ان کے پاس اتنی ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں تھی, ان کے پاس اتنی ملٹری کی سپورٹ نہیں تھی, اور پبلک اوپینین کی سپورٹ بھی نہیں تھی. ایران کے پاس سب کچھ ہے. رشیا اور چائنا جو ہے, بے شک وہ مانے یا نہ مانے, پریکٹیکلی تو انہیں ماننا چاہیے, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں. اگر آپ فالو کریں کہ کتنے کارگو پلین کہاں سے آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کتنی دفعہ کون کسے ملنے گیا ہے, اگر آپ یہ سارے پوائنٹس اکٹھے کرتے رہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ شپمنٹس جو ہیں وہ چائنا سے, رشیا سے ان کے پاس پہنچ رہی ہیں. بلکہ رشیا نے تو ان کو جو کندھے پہ رکھنے والے جو راکٹ لانچرز ہیں وہاں سے لے کر ایون ریڈار سسٹم, پورٹیبل ریڈار سسٹم بھی ان کو دیے, اور ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ ان کو فراہم کیا ہے. پاکستان جو ہے ہر طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے. خلیج کے ممالک جو ہیں وہ اپنی برداشت جو ہے وہ اپنی لیمٹ تک لے کے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کے خوف سے یہاں پہ ہم نے سیکیورٹی بیسز بنائی ہوئی تھی, اب آپ پر حملے ہو رہے ہیں انہی بیسز سے, تو ٹھیک ہے آپ کے حملے اگر وہاں تک صرف محدود رہتے ہیں تو بھی ہم برداشت کر لیں گے. لیکن اگر آپ اب پورے گلف کی اکانومی کو چوک کرنے پہ آ گئے ہیں, اور جتنے بھی راستے ہیں جو کہ دنیا کے لیے سپلائی لائن ہے, آپ سمجھیں کہ جیسے دنیا کا ایک آکسیجن کا پائپ ہے, آپ ادھر سے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو نہیں کھولنے دیتے, باب المندب بند کرنے کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز سے جن کے پاس لیجیٹمیسی بھی نہیں ہے, جن کے پاس اتنا انٹرنیشنل رول میں اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ واٹر ویز بند کرتے رہیں, جیسے کہ انصار اللہ. ان کی ریزسٹنس پہ مجھے کوئی وہ نہیں ہے, ان کی ریزسٹنس بالکل جائز ہوگی, ان کا ایران کے ساتھ تعلق بھی بالکل ان کی اپنی ڈسکریشن ہے. مگر وہ اوپن واٹر ویز کو اس طرح بند کرنے کی دھمکیاں دینا, اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی اکانومی کو برباد کر دینا, اور پھر ہمارا ریجن جو ہے وہ بہت کلوزلی نیٹڈ ہے, اس میں ایران ہمیشہ سے, ایون آپ سینچریز کی بھی بات کر لیں تو پرشین ایمپائر آڈ ون آؤٹ رہی ہے. پرشین ایمپائر کی اپنی ایک پرائیڈ ہے, ایک ہیوبرس ہے, تو وہ کنیکٹ نہیں کرتے, وہ اسیمیلیٹ نہیں کرتے کبھی بھی. وہ عجم جو ہے وہ عرب کے ساتھ, انہوں نے ان سویلائزیشن کو, ایون ان حکمرانوں کو بھی نہیں مانا. ان کی اگر ہسٹری دیکھیں, ہمارے پاس ظاہر ہے مارننگ شو میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا, ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایران اور فارس جو ہے وہ ہمیشہ آئسولیٹڈ ہی رہا ہے. ادھر سے اگر آپ دیکھیں خوارزم, بکتریا اور سوگڈریا کی جو ایمپائرز تھی, ان سے بھی یہ بالکل الگ تھے. وہ ادھر نہیں آتے تھے, یہ ادھر نہیں جاتے تھے, کیونکہ ایمپائر بہت بڑی تھی لیکن انٹیگریٹ نہیں کرتی. اب یہ آئسولیشن جو ہے ہمیں اس آئسولیشن میں ڈال رہی ہے. ہم بہت انٹیگریٹڈ ہیں. بالکل شازیہ صاحبہ, جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے, جس طرح سے یہ بند کروایا جا رہا ہے سارا کچھ, اب باب المندب جو بند ہو جاتی ہے تو پاکستان ایک تو ڈائریکٹلی پاکستان کی جو سپلائی چین ہے وہ بھی متاثر ہوگی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے حوثی جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں سعودی عرب کو, تازہ ترین جو دھمکی دی ہے
वो अरामको को जो कि आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब का एक तरह से पेट्रोलियम की शोबे के अंदर उनका दिल भी है, तो जब इस तरह से हमले होंगे तो पाकिस्तान के लिए तो ये दोहरे इम्तिहान की सूरत हाल नहीं पैदा होगी? नहीं, इम्तिहान नहीं होगा। वैसे पाकिस्तानी, मुझे लगता है हमारे लिए सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी। ईरान ईरान सही। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ईरान का एक सिंगल पीस में होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। लेकिन मैं अगर ईरानियन हिस्ट्री एज अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी जिस तरह फॉलो करूं, और वैसे भी एज आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, ईरान के अंदर ये टेंडेंसी है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको बिल्कुल आइसोलेशन में छोड़कर आपको अपने आप पर और अपने रास्ते पे निकल लेना। इनकी हमें हिस्ट्री में ये पता है, बहुत जितनी दफ़ा हमने इनकी मदद की है, इन्होंने ओपनली जो है वो पब्लिक स्फेयर में आके उसका जिक्र भी कर दिया है और हमें एम्बैरेसमेंट भी करनी पड़ी है। हम्म। यही जो है, हालांकि हमारा इनका कुछ न्यूक्लियर को देने का कोई इरादा भी नहीं था, खुदा जाने कहाँ से इनके पास बात पहुंची, कौन इनके साथ क्या काम कर रहा था। तो ये भी इन्होंने पूरा मलबा जो है, वो उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, अगली डिटेल में, तो इन्होंने पूरा मलबा जो है वो हम पे डाल दिया कि पाकिस्तान हमें फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये एक सर्टेन पॉइंट के बाद किसी के साथ इंटीग्रेट नहीं करते। हम्म। ये ऐसे थोड़ी हदीसें आई हुई हैं कि किसी अरबी को अजमी से फजीलत नहीं। आप इस फजीलत का मैग्नीट्यूड तो देखें। आप मेरे आपसे वो तकब्बुर सोच भी नहीं सकते हैं जो जी। इन सिविलाइजेशंस में होता है, कि हम्म। आपको अहादीस जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो उसका एक नेक्स्ट लेवल है, एक सर्टेन डिग्री तक ही आप इसके साथ चलते हैं। जब तक आप इनको आपसे काम हम्म। होता है, उसके बाद ये अपने रास्ते पे चलते हैं, और फिर इनके पास बड़े फ़हम फ़रासत रखते हैं, इल्मुल हम्म। कलाम पे इनकी बड़ी मास्टरी है, तो बड़ा अच्छा-सा हम्म। जवाब भी आपको देते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी। आपका सवाल ये था कि हमारे लिए सिचुएशन इस वक़्त ऑकवर्ड है, हम्म। डिफ़िकल्ट नहीं होगी, अगर हम्म। ईरान बाज़ नहीं आता। और जी। ये देखिए, सऊदी अरेबिया यमन के अंदर बैक कर रहा है, जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, जो नॉर्दर्न और सदर्न यमन को इकट्ठा रखना चाहती है। ठीक। वो अभी गवर्नमेंट वहाँ पे है नहीं, वो एक्साइल में है। यूएई सपोर्ट कर रहा है सदरन जो ट्रांजिशनल फोर्सेस हैं, तो हम्म। यही आपस में खटपट भी है यूएई और सऊदी अरेबिया की। और ईरान जो है, वहाँ पे एक जो अंसारुल्लाह है, जिनमें बहुत से कबीले हैं, एक हौसी भी हैं, इनको इनको सपोर्ट करता है। अब ये इनकी आपस की इंडिजिनस लड़ाइयाँ भी हैं, ऑर्गेनिक लड़ाइयाँ भी हैं। हम्म। सऊदी अरेबिया नेबरिंग कंट्री है। एक तरफ वो यूएई बैक जो है वो सदरन ट्रांजिशनल फोर्सेस के जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। दूसरा अंसारुल्लाह जो है, ये हूसी जो है, ये उनके लिए नॉर्थ में प्रॉब्लम है। तो ये, और यहाँ पे बाबल मंदेब बंद करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ सोमालीलैंड जो है, यूएई ने पूरे का पूरा इजराइल के साथ मिलकर उसको बैक किया हुआ है, अब उसको स्टेटस भी देने लगे हैं। जी। वो एक अलग वाटरवेज जो है, एक बहुत बड़ा उसको टच करता है। अगर सोमालीलैंड के ऊपर यूएई जो है वो अपनी बैक्ड जो है वो, और इजरायली बैक्ड वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर जो है उसको बंद कर देते हैं, तो क्या हम पायरेसी के दौर में जा रहे हैं? वो जो 17th सेंचुरी का एक टाइम पीरियड पूरा हम देखते हैं, जब अभी कॉलोनीज अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, उसको जी। टाइम ऑफ पायरेसी कहते हैं। कि पायरेट्स थे, बड़े बड़े पायरेट्स थे, जो बहरी लुटेरे। समुद्री जी। रास्तों पे कब्जे करके बैठे हुए थे, बहरी लुटेरे। जी बिल्कुल। तो ये कि हम दोबारा उसी रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ। हम ईरान के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन ईरान को हम्म। ये समझना पड़ेगा कि गल्फ के कंट्रीज हम्म। को आप इतना नहीं आजमा सकते। हम्म। उनके पास दरियाए सिंध या दरियाए रावी नहीं है, वो 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है। बिल्कुल वो अपनी शाजी साहिबा, गंदम, आपने सही अपना निशानदेही की है कि इतना अनाज नहीं जो है। आजमा सकते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पासदारान इनकलाब की जानिब से बरतानिया का जो फेयरफोर्ड एयर बेस है और कुवैत वॉर्डन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने के दावों के बाद क्या लगता है आपको, ये जंग अब बराह रास्त ईरान और नेटो या फिर अमरीकी इत्तेहादियों के दरमियान, जिनमें गल्फ भी है, आलमगीर एक तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है? मैं एस्टिमेट कर रही थी 2000 किलोमीटर, आप से स्क्वायर किलोमीटर भी रफली कह सकते हैं, ईरान अटैक कर रहा है। ईरान जो है वो इराक पे जो खुद सेपरेटिस्ट हैं उन पे अटैक कर रहा है, और जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पे कर रहा है, जॉर्डन में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, पूरे गल्फ पे कर रहा है। और अब अगर वो जो है वो सदरन जो ट्रांजिशनल फोर्स यमन में अगर हुसियों को रोकने की कोशिश करती है, तो वहाँ भी शुरू हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा रीजन तो आग की लपेट में ऑलरेडी है। हम्म। इसमें इजराइल जो है वो इस वक्त कोने में बैठा हुआ है, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत स्वेयर किस्म की बम्बार्डमेंट होने की इंटेल है हुसियों के पास। उनका कहना है कि हमने बाबल मंदेब बंद करने की बात इसलिए की है क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका प्लान कर रहा है
तमाम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पे एक ही टाइम पे बहुत हैवी बम्बार्डमेंट करना, यानी इराक में हश्द शाबी पे, हिजबुल्लाह पे लेबनान में और अंसारुल्लाह पे यमन में। तो इस वजह से हमने प्रीएम्प्टिवली ये कहा है कि ठीक है, हम तो गुरिल्ला फोर्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे हर बंदे के पास अपनी एक लॉजिक भी है। तो हम जी। यहाँ ये बहस नहीं कर रहे सुबह-सुबह कि किसकी लॉजिक सही है, किसकी लॉजिक हम्म। गलत। सही। बात ये है कि बाहर के लोग जो हैं, ग्लोबल हम्म। नॉर्थ जो है, वो कॉलोनियल पावर है। वो हमारे रिसोर्सेज को प्लॉन्डर करना चाहते हैं, वो लूट-खसोट करना चाहते हैं। और हम सदियों से अपनी आपस की लड़ाइयों में उनसे लूट-खसोट करवा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने नया मैकेनिज़्म बनाया, कॉलोनी बंद कर दी, तो उन्होंने आईएमएफ टाइप के जो है इदारे बनाकर हमें दोबारा से हम अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं। आईएमएफ हम्म। के होते हुए आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं? ईरान पे हमले क्यों हो रहे हैं कि इसका सेंट्रल बैंक जो है, वो स्विफ्ट सिस्टम के अंडर किया जाए। स्विफ्ट सिस्टम के अंदर करके फिर यहाँ पे एक पपेट बिठाया जाए या केओस कर दिया जाए। जी। उसके बाद यहाँ पे एक एंडोमेंट फंड बनाया जाए इराक की तरह, और फिर पैसे जो हैं इनके रिसोर्सेज, क्योंकि इतने रिसोर्सेज हैं, आप पाकिस्तान को देख लें, बेहतरीन वेदर है, एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हर चीज़ है, जी। लेकिन हम उसके डिविडेंड कितने फ़ायदा उठा पाते हैं? क्योंकि हम्म। हम इस तरह से जकड़े हुए हैं उसी कॉलोनियल पावर में। तो हमें लॉजिक पे नहीं बहस करनी है, किसकी लॉजिक ठीक है, अंसारुल्लाह की हम्म। ठीक है, कौन हक पे है, कौन बातिल पे है। हमने ये सही। देखना है कि हमारा बचाव जो है वो इकट्ठे है। ये रीजन इकट्ठा जो है वो उसकी शिकस्त है, और इकट्ठे ही उसकी हम्म। जो है वो हम्म। फतह है। अच्छा शाज़िया अगर साहिबा, ईरान इस को पर ये भी मैं इतनी-सी बात आपका समझ में यकीनन नहीं आप आ रही। सही इत्तेहाद की निशानी जो बात कर रही हैं, निशानदही कर रही हैं, और बिल्कुल असरात जो हैं वो सब पर ही आएंगे अगर अनरेस्ट होता है तो। लास्टली ज़रा इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। अगर हम देखें तो सऊदी अरब के हवाले से अमेरिका जो है वो कह रहा है कि सिविल जो जी मायदा जो है, अगर सऊदी अरब वो करना चाहता है तो फिर इब्राहिमी मायदे में शमूलियत जो है वो ज़रूरी है, उससे मशरूत कर रहा है, नथी कर रहा है, कंडीशनल है। आपको लगता है कि सऊदी अरब इस वक्त में अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। गज़ा के हम्म। जेनोसाइड के बाद जो भी इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, वो पब्लिक जो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, खास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, उसके लिए जी। सुइसाइडल है पॉलिटिकली। और ये मोनार्कीज़ जो हैं, ये वैसे ही बहुत एस्टेब्लिश्ड और बहुत स्टेबल नहीं है। इनके पैर हम्म। बहुत ज़्यादा ज़मीन में जड़ें गड़ी हुई नहीं हैं। ये बहुत ही हम्म। वल्नरेबल हैं, हम्म। क्योंकि 19th सेंचुरी का तो ये सारा सोशल कंस्ट्रक्ट है। जी। तो इसमें बिल्कुल भी कोई इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन रहा। और अगर ईरान को अपने न्यूक्लियर जो है वो पावर जनरेशन के प्लांट वहाँ पे लगाने हैं इलेक्ट्रिसिटी के हम्म। लिए या किसी और के लिए, तो उसे अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन जो है वो रशिया जो है वो प्रोवाइड करता है, जो ईरान को भी कर रहा है, चाइना के पास है, और हम खुद न्यूक्लियर पावर हैं। तो अगर क्योंकि हमारा तो प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो हम न्यूक्लियर से कुछ भी और करेंगे तो फिर तोपों का रुख हमारी तरफ हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट अभी नहीं कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से, लेकिन जो ठीक। टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपर्टीज हैं, वो हम्म। सऊदी अरेबिया को अमेरिका से लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये लॉजिकल नहीं है। ये वही हम्म। ट्रम्पियन बयान है, जो किसी भी वो रात के 3 बजे उठकर कुछ भी कहते हैं। तो ये रात बिल्कुल के 3 शाज़िया बजे साहिबा, और वाला अभी भी बयान ताज़ा है, इसका तरीन और बयान कोई यही मतलब आया नहीं। कि अभी ईरान को शदीद तकलीफ नहीं पहुंची, बड़े हमले के लिए प्लानिंग मुकम्मल है, किसी भी वक्त किया जा सकता है। इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच शाज़िया चीमा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और इस पर अपना तज्ज़िया भी दे रही थी।